students, now we'll see this experiment, sonometer law of tension. So in the previous experiment we had discussed about law of length. There the criteria was something different, here the criteria will be different. लेकिन रहेगा वही experiment, the sonometer wooden hollow box is considered here, and in this wooden hollow box from one of the rigid support wire is passed through the knife edges, and after that it is attached with the pulley to the load. Load is given as T is equal to mg. यहाँ पर भी अपने को वही करना है, we have to keep this vibrating tuning fork on the surface of the sonometer, and because of which there is a resonating effect by which there is a formation of antinode and the paper rider which is kept on the string gets come down. वो paper rider वहाँ पर गिर जाएगा. लेकिन एक्सपेरिमेंट में फर्क क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सपेरिमेंट, लॉ ऑफ लेंथ एंड लॉ ऑफ टेंशन, दोनों में फर्क क्या आएगा वो अपने को देखने का है. लास्ट एक्सपेरिमेंट दैट इज इन लॉ ऑफ लेंथ वी हैड केप्ट दिस टेंशन कांस्टेंट, लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट, and there NL was coming as constant. Now in this case for sonometer law of tension we will keep this tuning fork fix, मतलब इसमें अपने को एक ही tuning fork रखने का है, tuning fork change नहीं करने का. फिर बदलेगा क्या, we will change this tension attached to the string. फिर इस एक्सप्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये फंडामेंटल मोड का अपने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है. What we will do that, यहां पर अपने उसको स्क्वायर करेंगे, that means it will become as n square is equal to 1/4 L square into T by M. पूरे एक्सप्रेशन को हमने स्क्वायर कर दिया. नाउ इस एक्सप्रेशन में अगर ध्यान से देखेंगे तो T/L square को एक साथ ले लिया, we have taken T by L square together. The remaining all other term 4n square के साथ mn square के साथ जाएगा, that means this will become as 4n square m. Now here since frequency, that is frequency of the tuning fork, अगर tuning fork ही फिक्स है तो इसका मतलब frequency भी उसका फिक्स होगा. Linear density of the string is also fixed, string हम लोग चेंज नहीं करते तो इसका मतलब linear density is also constant. So n और m अगर constant होगा तो पूरा expression 4n square m constant आएगा, that means here we'll get this T by L square is equal to constant. मतलब throughout this experiment of law of tension we should get this T by L square at constant. जैसे वहाँ पर law of length में NL constant आएगा, similarly यहाँ पर T by L square constant आएगा. And then using this T by L square as per your slip of the exam में जैसा slip रहेगा, either it is said that calculate the linear density of the wire or it is said that calculate the unknown frequency of the tuning fork. जो tuning fork frequency दिया रहेगा उसका frequency अपने को निकालने के लिए आएगा. तो depending upon the slip you have to do the experiment in the exam. This is sonometer law of tension. Now in law of tension we keep tuning fork fix, तो उसका frequency भी fix है. अभी फिलहाल मेरे पास जो tuning fork है we will be using frequency of tuning fork 341 Hz. Linear density of the wire it is of 0.011 ग्राम पर सेंटीमीटर का है. Then comes ये टेबल आएगा उसके अंदर. अब यहाँ पर कैसा है, मास अटैच टू द वायर, तो मास अटैच टू द वायर इफ़ यू कैन सी ये हैंगर पिछली बार भी एक्सपेरिमेंट में देखा था, तो इस सिर्फ हैंगर अगर कंसीडर करेंगे तो इट इज़ ऑफ 500 ग्राम. तो हैंगर के साथ मैंने सपोज इसमें 500 और डाला, तो हैंगर के साथ 500 डाला तो मतलब मास अटैच टू द वायर कितना होगा, 1 किलोग्राम होगा इसके अंदर. यू कैन स्टार्ट विद 0 ऑल्सो, तो अब यहाँ पर 1 किलोग्राम कंसिडर करते हैं तो यानी कि 1000 ग्राम आएगा. 1000 ग्राम है, दैट इज़ मल्टीप्लाइड विद जी, और जी से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 इंटू 980, तो दैट विल बी कमिंग एज 980,000 विच इज़ 9.8 इंटू 10⁵. नेक्स्ट वेट विल बी 1500 ग्राम्स, उसके बाद आएगा 2000 ग्राम्स, एंड नेक्स्ट वन विल बी 2500 ग्राम्स. यहाँ पर आप 500 से भी शुरू कर सकते हैं. 1500 इंटू 980 कंसिडर करेंगे तो दिस वैल्यू विल कम एज 147,000, दैट इज़ 14.7 इंटू 10⁵ आएगा. 2000 अगर कंसिडर करेगा दैट विल कम एज 196,000, दैट इज़ 19.6 इंटू 10⁵. और 2500 अगर कंसिडर करें दैट इज़ 245,000, दैट इज़ 24.5 इंटू 10⁵. ये उसके वैल्यूज हो गए, फर्स्ट वाले का, सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वन. एंड देन यू हैव टू मेजर द वाइब्रेटिंग लेंथ. तो अभी फिलहाल मैंने 1 kg लिया, एज यूजुअल लॉ ऑफ लेंथ में जैसा कंसिडर किया था, इसको पुली पे से पास करेंगे. देन नाइफ एजेस फिर से वापस नज़दीक से ही शुरू करना है आपको, मिनिमम लेंथ से शुरू करने का. यू शुड स्टार्ट विद मिनिमम लेंथ, तो 5 से 7 सेंटीमीटर के आसपास शुरू करेंगे. एंड देन विल स्टार्ट विद अवर एक्सपेरिमेंट.
एज यूजल ट्यूनिंग फोर्क स्ट्राइक किया, पेपर राइडर को यहाँ पर गिराना है अपने को. स्लोली यू हैव टू मूव दिस नाइफ एज, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन नाइफ एजेस शुड बी इंक्रीज. स्लोली इसको बढ़ाएंगे. As I told you earlier also, for sonometer experiment, you require patience. Patience होना चाहिए आपके पास. थोड़ा सा वाइब्रेशन हुआ है, पेपर राइडर थोड़ा सा वाइब्रेट करना शुरू किया है. देख रहा है, स्ट्राइक किया है तो पेपर राइडर में वाइब्रेशन है, गिर भी गया. नाउ वी कैन मेजर दिस वाइब्रेटिंग लेंथ. इट इज कमिंग एज 13.8. सो फॉर फर्स्ट मास इट इज कमिंग एज 13.8 सेंटीमीटर. देन यू हैव टू रिपीट द सेम प्रोसीजर. वापस नाइफ एज to be kept on the wire. Take this knife edge little bit inside, and now measuring the length, it is again coming 13.8. sometimes reading repeat हो सकता है, लेकिन हर बार होगा ऐसा नहीं है, not every time. mean of this is coming as 13.8 सेंटीमीटर. फिर उसके बाद 1500 के केस में अभी देंगे लेंथ. तो अगर आपने टेंशन बढ़ाना है तो क्या होगा, दिस 500 ग्राम्स विल बी अगेन प्लेस्ड इन दिस हैंगर. ये हैंगर के अंदर इसको देखो प्लेस करेंगे, वापस हैंगर में डाला. Now it is 1.5 kg. Place it slowly over the pulley and release it. नाइफ एज के बीच का डिस्टेंस इधर से और आगे बढ़ेगा, तो वापस इनिशियल से शुरू करने का ज़रूरत नहीं है. डोंट स्टार्ट विद द इनिशियल से शुरू नहीं करने का है. स्लोली यू हैव टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द नाइफ एजेस. नाउ हियर स्ट्राइकिंग दिस ट्यूनिंग फोर्क विल प्रोसीड फर्दर. Slowly increasing the distance between the knife edges. Measuring the distance between them, it is coming as 16.8. इसका लेंथ है अपने पास 16.8 सेंटीमीटर. फिर वापस प्रोसीजर रिपीट करना है फॉर दैट सेम टेंशन. कीपिंग दिस पेपर राइडर ऑन द वायर. फिर से ट्यूनिंग नाइफ एजेस को अंदर लिया. अगेन स्ट्राइकिंग इट. स्लोली मूविंग अवे दिस नाइफ एजेस और टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द नाइफ एजेस. थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए.
measuring the distance between knife edges, it is coming as 16.6. तो 16.6 मीन इज 16.7 सेंटीमीटर. सो ऑन. फिर ऐसे ऐसे मास बढ़ते जाएगा, लेंथ इंक्रीज होता जाएगा. ना इसका कैलकुलेशन अपने को देखना है. फॉर दिस वन इफ यू कैन सी हियर, लॉग ऑफ टी बोला है. अभी लॉग ऑफ टी अगर देखेंगे तो फॉर फर्स्ट वन इट इज 98000. तो डेसिमल के पहले कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6, मतलब कैरेक्टरिस्टिक विल बी 5 पॉइंट. मैंटिसा 98 का 0 लेना है और लॉग में 98 का 0 9912 है. आई कैन शो यू हियर 9912. देखो 98 का 0 9912 है. सो मैंटिसा इज कमिंग एज 9912. लॉग ऑफ एल इज इक्वल टू बी. एल कितना है? 13.8. डेसिमल के पहले 2 डिजिट, कैरेक्टरिस्टिक विल बी 1 पॉइंट. 13 का 8, 13th रो और 8th कॉलम अगर कंसिडर करेंगे तो 13th रो का 8th कॉलम अगर लेंगे तो इट इज कमिंग एज 1399. 1399. दिस इज 2b. 2b गिव्स एज 2 log l, दैट इज log ऑफ l स्क्वायर. मतलब b को 2 से मल्टीप्लाई करना है. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 9s 18, 1 कैरी, 2 9s 18, 1 19, 1 कैरी, 2 3s 6, 1 7, 2 1s 2 एंड 2 ins 2. एंटी लॉग ऑफ 2b लेंगे तो 2798 का एंटी लॉग लेने का है. तो एंटी लॉग टेबल में आने का है 2798, दैट इज 0.27. 0.27 का 9, दैट इज 1901 और उसका 8th मिन डिफरेंस इट इज कमिंग एज 3, 1904 हो जाएगा. तो दिस विल कम एज 1904. कैरेक्टरिस्टिक 2 है. आफ्टर एडिंग 1 इट विल बिकम एज 3. तो इसका मतलब है डेसिमल विल बी आफ्टर 1 2 3 190.4. नेक्स्ट वन इज a minus 2b is equal to c. That means from a you have to subtract this 2b. तो सब्ट्रैक्ट करना है. a का वैल्यू कितना है इधर? 5.9912 माइनस 2b का वैल्यू कितना है? 2.2798. Do the subtraction. 1 carry. 12 minus 8 that is 4, 0, 1 carry. 10 minus 9 that is 1. 8 minus 7 that is 1. 9 minus 2 that is 7. 5 minus 2 that is 3. तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ रहा है? 3.7114. 3.7114. फिर एंटी लॉग में 71 रो फर्स्ट कॉलम 4th मिन डिफरेंस. एंटी लॉग में 71 का रो और उसका फर्स्ट कॉलम 71 रो का फर्स्ट कॉलम, 0 के बाद फर्स्ट कॉलम कितना है? 5140 एंड 4th मिन डिफरेंस इज कमिंग एज 5. तो 5140 प्लस 5 दैट इज 5145. 5145. अब ये 3 है, इसका मतलब 1 ऐड करेंगे 4. तो आफ्टर डेसिमल, आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स डेसिमल? 4 डिजिट्स. 1 2 3 4 दैट इज 514 एंड सो ऑन. आपको टेबल फिल करना है. अभी इसका फ़ायदा क्या है? ये एल स्क्वायर का वैल्यू 190.4 इधर आएगा एंड टी बाई एल स्क्वायर इज 5145. कैलसी से कैलकुलेट नहीं करना है, लॉग टेबल से करना है. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर लॉग का प्रॉब्लम है तो लॉग का वीडियोस है, आप देख सकते हैं उसके अंदर. यू कैन वॉच इट एंड अंडरस्टैंड हाउ द कैलकुलेशन ऑफ द लॉग विल बी डन. फिर ये 4 वैल्यू आने के बाद अपने पास मीन टी बाई एल स्क्वायर चाहिए. और मीन टी बाई एल स्क्वायर अगर कैलकुलेट करेंगे, मान लेते हैं सपोज अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ कमिंग एज 5000. अभी मैं फ़िलहाल ले रहा हूँ, आएगा उतना ज़रूरी नहीं है, इसके आसपास हो सकता है. 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो दिस इज़ 5000 9%. लेकिन फिर इसका यूज़ कैसा है? हियर आई विल फाइंड आउट दैट अननोन फ्रीक्वेंसी और उसका फॉर्मूला अपने पास है. अननोन फ्रीक्वेंसी इट इज़ 1/2L अंडर रूट ऑफ टी बाई एम. अब इसको अगर कैलकुलेट करने का 1/2L को अगर रूट के अंदर लेके जाएंगे, दिस विल बिकम एज 1/4L स्क्वायर. While taking any term inside the root, it will be squared. It is t upon m. That means under root of 1/4m into t by L square. That is under root of 1/4
4 इंटू एम का वैल्यू है 0.011, ये हमने ऑब्जर्वेशन में यहाँ कंसिडर किया था, इंटू टी बाई एल स्क्वायर 5000 कंसिडर किया। ना कैलकुलेटिंग दिस कम्स एज अंडर रूट ऑफ 5000 अपॉन 0.044। इसी का कैलकुलेशन अपने को करने का है ना। कैलकुलेशन करने के लिए तो अभी रूट है, मतलब पावर 1/2 है, तो व्हाट आई विल डू दैट, दिस विल बी एंटी लॉग ऑफ 1/2, पावर इसका 1/2 है तो इसलिए 1/2 नीचे आएगा, एंड दैट इज लॉग ऑफ 5000 माइनस लॉग ऑफ 0.044। फिर कैलकुलेशन लॉग और एंटी लॉग वाला आएगा। दिस इज एंटी लॉग ऑफ 1/2 इंटू लॉग ऑफ 5000। तो डेसिमल के पहले कितना 5000 में डिजिट्स, डेसिमल के पहले डिजिट 5000 में 4, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा इसका 3.50 का 0 देखने का, तो लॉग टेबल में 50 का 0 6990, इट इज़ 6990 माइनस डेसिमल के पहले 0 है मतलब बार 1, बट आफ्टर डेसिमल ऑल्सो देर इज 1 कॉन्जिक्यूटिव 0, मतलब कैरेक्टरिस्टिक विल बी बार 2, एंड देन मैंटिसा पार्ट इसके अंदर निकालना रहेगा, तो 44 का 0 आएगा। लॉग का कैलकुलेशन लॉग टेबल के वीडियो से देख सकते हो। If at all you are finding difficult to do the calculation with the log, watch the video of log carefully. There are 2 videos, log part 1 and part 2. 6435 44 का 0। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है अपने को। सब्ट्रैक्शन किसका है, 3.6990 माइनस बार 2.6435 1 carry 10 minus 5 that is 5, 8 minus 3 that is 5, 9 minus 4 that is 5, 6 minus 6 that is 0, 3 minus of minus bar 2 मतलब 3 plus 2 that comes as 5, यानी कि this is anti log of 1/2 into 5.0555, this is anti log of 2, इसको डिवाइड करेंगे, 2 2s are 4, 1 carry 2 5s are 10, 2 2s are 4, 1 carry 2 7s are 14, 1 carry 2 7s are 14, और आगे जाने की जरूरत नहीं, 4 डिजिट काफ़ी अपने लिए। एंटी लॉग में 52 का 7 देखने का, तो विल गो विद द एंटी लॉग टेबल 52 का 7 0.52 का 7 और उसका 7th मिन डिफरेंस। 0.52 का 7 देखेंगे तो इट इज़ 3365 और 7th मिन डिफरेंस लेंगे दैट इज़ 5, 3365 प्लस 5 3370, तो एंटी लॉग इज कमिंग एज 3370। 2 है, 1 ऐड करेंगे 3 होगा, मतलब 1 2 3, आफ्टर 3 डिजिट्स डेसिमल पॉइंट दैट मेनी हर्ट्स इज द अननोन फ्रीक्वेंसी। नाउ इफ यू कैन वॉच हियर, मैंने 341 हर्ट्स का फ्रीक्वेंसी लिया था और बाय एक्सपेरिमेंट आई हैव गॉट 337 हर्ट्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी। मतलब कैलकुलेशन बराबर अगर करेंगे, एक्सपेरिमेंट बराबर करेंगे तो विल गेट दैट नेसेसरी रीडिंग।